Hey everyone, this is Trishla, and today we are gonna talk about tourist typology and behaviors. Before going any further, I would like to address some things on my part that uh, tourist typology and behaviors and such topics which just seems basic, very basic of tourism is essential to study because these topics, such kind of topics, gave us concept clarity about tourism. And in any prep you do, in any exams, you need to have concept clarity about topic, about that industries. Tourism is not just about let's get the bag ready and take off. No, tourist is very much extended, expanded in the knowledge. So and second thing I would like to address that in UGC NET preparation of the tourism administration and management, there is lack of teachers, there is lack of guidance, there is lack of we might see, as we start doing preparation, we are इन द हम उस एरिया में जहाँ हमारे पास ज़्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होते हैं। शुरुआत में हमें रिसोर्सेज बनाने पड़ते हैं, ठीक है। तो ये हम, और इसमें इंटरनेट बहुत हेल्प करता है, चाहे वो वीडियोस हो, चाहे वो ईपीजी पाठशाला का कंटेंट हो, चाहे बुक्स हो लाइब्रेरी में जो जहाँ से हम कोर्स करते हैं वहाँ पे मिलती है। लेकिन जनरली हमारी प्रिपरेशन एक नॉर्मल डिग्री के बाद स्टार्ट होती है यूजीसी नेट की। तो हम ये मानते हैं जनरली इन द सेंस कि मोस्ट ऑफ द पार्टिसिपेंट्स बाद डिग्री के बाद ही स्टार्ट करते हैं। ये मेरा भी एक्सपीरियंस रहा है कि भाई मैंने एमबीए के लास्ट सेमेस्टर में डिसाइड किया था कि हाँ भाई मुझे नेट देना है। तो दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड टू सर्च फॉर रिसोर्सेज, सर्च फॉर टीचर्स, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, बट नथिंग हैपेंड. So I started doing preparation on my own, and in that time I came across many mentors from my MBA degree and from other coaching, but nothing really works in that zone except you can work on yourself, you can work on the syllabus, and yeah. The very important thing I did was, which was also an advice from my mentor, was solve PYQs. You know, for if you want to have an idea that how is questions gonna be asked, so you have to solve PYQs. I know PYQs is a very मच पार्ट ऑफ लास्ट स्टेज प्रिपरेशन की। हाँ, जब हमारे पास मॉक नहीं होते हैं तब हम PYQs लगाते हैं, लेकिन हमें उससे पहले भी अगर कोई पेपर अटेम्प्ट करना है तो वी नीड टू एनालाइज द PYQs, एंड we need to get into the depth of the thinking of the examiner, that what he or she want to ask, what is expected of a student of tourism to know about the industry. So PYQs is very substantial part of your preparation. So the advice which I got was solve PYQs and solve in the proper register for just only PYQs. Take a one question, ठीक है, take one question, see its explanation, ठीक है, answers explanation, and write downwards the explanation and the explanation of other 3 options as well. ठीक है, आपने एक क्वेश्चन ले लिया, ठीक है, उसका आंसर जो था वो तो सही था ही, उसका एक्सप्लेनेशन तो अलग है, ठीक है। देन जो आपके 3 ऑप्शंस और दे रखे हैं उसके बारे में भी आपको कहीं से कुछ ढूंढ के लाना है कि भाई ये ऑप्शन क्यों दिया है ना, ये ऑप्शन भी इसके पीछे देने का क्या एक्सप्लेनेशन था। क्योंकि ऑब्वियसली MCQs है तो हम समझते हैं कि बहुत इजी होगा, लेकिन वो MCQs में भी बहुत ट्रिकी ऑप्शंस देते हैं जिससे बच्चा कंफ्यूज होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं कि यार ये कि ये कि ये, ठीक है। तो आपको
ऐसे PYQ सॉल्व करना है, मैंने भी किए, तो दैट वेंट सो वेल, आई डिड गेट सो मच क्लैरिटी, सो मच help, some kind of major help by doing that. So I would suggest that you guys do the same. ठीक है, that was it, and let's proceed with the topic. Today's topic is tourist typology and behaviors. So as you can see in the picture as well, that there are 5 different persons dressed in different types, moving in different directions, looking for in different directions, doing something different. That let's say this one is actually taking things, writing things down in his diary, and this person is taking a backpack, bottles, camera. This person, this lady here is dressed very pretty and is excited to see new places, click some photos, and this is very well dressed as well, and he or she is kind of in his own direction, in his own zone. So there are types of tourists actually. आपने भी देखा ही होगा कि हम जब भी घूमने जाते हैं अपने शायद पेरेंट्स या फ्रेंड्स या जिस भी ग्रुप के साथ जाते हैं, कॉलीग्स वगैरह, सबके घूमने का तरीका अलग अलग होता है. किसी को दिन भर बाहर रहना पसंद होता है कि यहाँ खा लिया, यहाँ घूम लिया, ये हो गया. किसी को लगता है कि बस यार हमें अपने यूजुअल एनवायरनमेंट से बाहर निकलना था, और होटल में जाके भी वो वही काम कर रहे होते हैं जो वो नॉर्मली घर पे करते हैं. ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे टाइप्स होते हैं. ठीक है, इन टाइप्स को और क्लैरिटी के साथ जो दिया है वो आने वाले हम जो पढ़ेंगे स्कॉलर्स, उन्होंने दिया है. ठीक है, तो इफ़ वी गो फर्दर, वी हैव इज ग्रेस क्लासिफिकेशन 1970. ठीक है, अगेन दैट क्रोनोलॉजी इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. प्लीज़ 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 क्रोनोलॉजी को मत छोड़ना. ठीक है, क्रोनोलॉजी हैज़ बीन आस्क्ड ओवर एंड ओवर अगेन इन एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चन, नॉट जस्ट दिस, एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चन. तो क्रोनोलॉजी इज़ इम्पॉर्टेंट. ठीक है, if we talk about the Gray's classification, Gray was the scholars who gave this tourist classification for the first time in 1970, and he gave it in 2 elements. That one is wanderlust and second is sunlust. Wanderlust are those who have desire to exchange the known for the unknown, to leave familiar things and to seek new experience, place, people and culture. जैसा कि आपको डेफिनेशन समझ आ ही गया होगा, वो नोन से अननोन की तरफ जाते हैं. ठीक है, जो चीज़ें उन्हें पता है वो तो ठीक बात है, लेकिन वो और जानना चाहते हैं, जो अनजानी चीज़ें हैं वो उनको जानना चाहते हैं. ठीक है, टू लीव फेमिलियर थिंग्स. ठीक है, वो अपने यूजुअल एनवायरनमेंट, अपने फेमिलियर एनवायरनमेंट से बाहर निकल के कोई और नई चीज़ें और नए एक्सपीरियंसेस जानना चाहते हैं. दैट आर कॉल्ड wanderlust. Second is sunlust, a desire to travel and enjoy sunny places. इसमें सनी के अलावा हम और भी प्लेसेस कर सकते हैं, जैसे स्नोई. ठीक है, और जैसे पीस. ठीक है, कूल वेदर. ठीक है, सनलस्ट इज टू डिज़ायर टू ट्रैवल द नेचुरल क्लाइमेटिक प्लेसेस. ठीक है, जैसे इंडिया है तो इंडिया का क्लाइमेट ट्रॉपिकल है, तो जो बहुत ठंडे इलाकों में रहते हैं वो इंडिया में सनी प्लेसेस या सनी वेदर के लिए आना चाहते हैं. तो दैट आर कॉल्ड सनलस्ट. नाम में सनलस्ट है इसलिए हमने कहा कि सनी प्लेसेस देखने आते हैं. बाकी जनरली ये वो लोग होते हैं जिनका मोटिवेशन जो होता है वह क्लाइमेटिक थोड़ा सा कैटेगराइज्ड होता है. ठीक है, if we are going to the second classification, which is Cohen tourist typology, very important. ठीक है, एरिक कोहन जो थे उन्होंने एक क्लासिफिकेशन दिया था टूरिस्ट का. ठीक है, and as you can see in the table itself that this is institutionalized tourism. first category ये हो जाती है कि institutionalized and non institutionalized. ठीक है,
इंस्टीट्यूशनलाइज में क्या होता है कि हम अपने अपने आइटनरी को एक ट्रैवल एजेंसी या टूर ऑपरेटर से बनवाते हैं। तो वो ट्रैवल एजेंसी क्या है, वो एक इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, वो एक इंस्टीट्यूशन है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, वहां से वो आइटनरी बन के आती है, तो हम कहते हैं इंस्टीट्यूशनलाइज टूरिज्म। नॉन इंस्टीट्यूशनलाइज टूरिज्म में क्या होता है, इंडिविजुअल ट्रैवल होता है, शनिंग कॉन्टैक्ट विद द टूरिज्म इंडस्ट्री एक्सेप्ट वेयर एब्सोल्युटली नेसेसरी। जहां एकदम जरूरत पड़ जाए वहां तो आपको कॉन्टैक्ट करना ही पड़ता है, अदर देन वो एकदम कट के चलते हैं इंस्टीट्यूशनलाइज टूरिज्म से। यानी वो अपना प्लानिंग, अपनी जो भी जर्नी होती है वो बिना किसी अथॉरिटी के चलते हैं। अथॉरिटी इन द सेंस कि बिना किसी एक सेट पाथ पे नहीं चलते हैं, वो अलग घूमना चाहते हैं, इंडिविजुअली घूमना चाहते हैं। तो दैट कम्स अंडर द नॉन इंस्टीट्यूशनलाइज्ड tourism. Sorry for this word, I cannot say it, I am stabbling. Institutionalized tourism, ठीक है। Now comes to the classification. The organized mass tourist first, ठीक है, individual mass tourist second, the explorer third, the drifter fourth, ठीक है। ऑर्गेनाइज मास टूरिस्ट में क्या होता है कि द टूरिस्ट फॉलोज, टूर गाइड फॉलोज आइटनरी फिक्स्ड इन एडवांस। इसका ये तो पॉइंट्स है ही है, उसके अलावा क्या है कि टूर गाइड को वो फॉलो करते हैं और अपनी आइटनरी जो होती है वो अपनी एडवांस में फिक्स करके चलते हैं, ठीक है। अदर देन दैट, लो ऑन एडवेंचरसनेस, ट्राई टू मेंटेन एनवायरमेंटल बबल। एनवायरमेंटल बबल क्या है कि हम तो भाई टूर गाइड के अंडर है, जो भी कुछ होगा ये संभालेगा, तो वो हमारा काइंड ऑफ एक सेफ्टी बबल हो जाता है कि जो कुछ होगा ये संभालेगा, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, ठीक है। परचेज रेडी मेड पैकेज टू, ऑब्वियसली आइटनरी, फिक्स्ड आइटनरी, लिटिल कॉन्टेक्ट विद लोकल कल्चर पीपल। वो बस जाते हैं टूर गाइड के अंदर, घूम के आ जाते हैं, फिक्स्ड अट्रैक्शंस देख के आते हैं, फिक्स्ड पाथ पे चल के आते हैं। तो ऐसे टूरिस्ट क्या कहलाते हैं, ऑर्गेनाइज मास टूरिस्ट, ठीक है। आप नाम से ही समझ जाओ ना, ऑर्गेनाइज मास टूरिस्ट, जो ऑर्गेनाइज वे में चलते हैं, ठीक है। इंडिविजुअल मास टूरिस्ट में similar to the above but more flexibility and scope for personal choices built in, important part है ना। इंडिविजुअल मास टूरिस्ट आ गए अब यहाँ पे। ऑर्गेनाइज टूर एनवायरमेंटल बबल शील्ड्स हिम फ्रॉम द रियल एक्सपीरियंस ऑफ द डेस्टिनेशन। अदर देन दैट दे आर नॉट बाउंड टू अ ग्रुप, कंट्रोल टाइम एंड आइटनरी, ठीक है। कोई इनका कंट्रोल टाइम नहीं होता कि भाई इतनी बजे हमें यहाँ जाना है, इतनी बजे हमें वहाँ जाना है। टूर गाइड के कोई ज़्यादा अंडर नहीं होते, फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है, पर्सनल चॉइस का स्कोप ज़्यादा होता है, ठीक है। तो दैट आर कॉल्ड इंडिविजुअल मास टूरिस्ट। नाउ वी कम्स टू द एक्सप्लोरर। The trip is organized independently, obviously looking to get off the beaten track, comfortable accommodation, reliable transport, environment, but the bubble is abandoned on occasion. Explorer है, ठीक है, ये travels alone, seeks comfortable accommodation and reliable transportation, ठीक है। लुकिंग टू गेट ऑफ द बीटन ट्रैक, यानी जो यूनिक चीजें हैं वो करने में बिलीव करते हैं, ठीक है। तो दे आर कॉल्ड एक्सप्लोरर। ड्रिफ्टर, नो कनेक्शन टू द टूरिज्म इंडस्ट्री, गेट एज फार एज फ्रॉम होम एंड फेमिलियरिटी, नो फिक्स आइटनरी, लिव्स विद लोकल, इमेंस इन देयर कल्चर। और ये तो एक्सप्लोरर का भी नेक्स्ट स्टेज है, ड्रिफ्टर, ठीक है। उनको टूरिज्म इंडस्ट्री से कोई कनेक्शन नहीं रहता है, वो अपने खुद चलते हैं, अपने होम से, अपनी फेमिलियरिटी, एनवायरनमेंट से एकदम दूर जाने की कोशिश करते हैं, कोई फिक्स आइटनरी नहीं होते हैं, लोकल्स और उनके कल्चर के साथ रहना पसंद करते हैं। ये है कोहन टूरिस्ट टाइपोलॉजी 1972। क्रोनोलॉजी, अगेन आई एम सेइंग क्रोनोलॉजी इज वेरी हैज बीन आस्क्ड वेरी मच टाइम्स, ठीक है। Coming to the next classification we have is that is actually, sorry to not mention here, that is the classification of American Express, ठीक है। and it was given
Actually there is no proper year of when it was given, but it was given by the Indian Express. ठीक है, and they have classified tourists into 4 categories, which are adventurer, warriors, dreamers, economizer and indulgers. ठीक है, वैसे तो आप I'm guessing that you are familiar with this tourist typology, and again if you will read this material you will get the clarity as well. फिर भी मैं एक बार और आपको समझा देती हूँ. एडवेंचरर कौन होते हैं? एफ्लुएंट एंड एजुकेटेड. एफ्लुएंट का मतलब क्या होता है? जिनके पास अच्छा खासा पैसा होता है. ठीक है, दोज हु आर रिच एंड एजुकेटेड, एंड दे डू नॉट बॉदर अबाउट मनी, दे डू नॉट बॉदर अबाउट बजट. ठीक है, तो दे लाइक टू ट्राई न्यू एक्सपीरियंसेस एंड मीट न्यू पीपल. ट्रैवल प्लेज अ सेंट्रल रोल इन देयर लाइफ्स. ठीक है, तो वो होते हैं एडवेंचरस. वॉरियर्स कौन होते हैं? लैकिंग इन सेल्फ कॉन्फिडेंस and in their abilities to travel successful, nervous flying and take domestic holidays, travel as stress laden. उन्हें ट्रैवल जो होता है बहुत स्ट्रेस गिविंग लगता है कि कहाँ जाएंगे हम, क्या करना है, यहीं रहो, वहाँ पे बहुत खाने की दिक्कत, रहने की दिक्कत, घूमने की दिक्कत. तो वो वरियर्स, दे कीप्स वरिंग ऑल द टाइम अबाउट ट्रैवल. ठीक है, तो दे ऑब्वियसली लैकिंग इन सेल्फ कॉन्फिडेंस, तो दे आर कॉल्ड वरियर्स. ड्रीमर्स कौन होते हैं? हाई एस्पिरेशंस अबाउट ट्रैवल एंड एक्सोटिक डेस्टिनेशंस, प्लेस ग्रेट वैल्यू ऑन मैप्स एंड ट्रैवल बुक्स. ठीक है, ड्रीमर्स जो होते हैं, अगर हम देखें तो कुछ टूरिस्ट ऐसे होते हैं, कुछ पर्सन्स ऐसे होते हैं, वो जस्ट ट्रैवल के नाम से ही, के आइडिया से ही बहुत फैसिनेट हो जाते हैं. ठीक है, दे लाइक स्टोरी टेलिंग अबाउट देयर ट्रैवल डायरीज, ट्रैवल एक्सपीरियंसेस, दे लाइक टू शेयर, दे लाइक टू रीड अबाउट ट्रैवल. तो वो होते हैं ड्रीमर्स. ठीक है, प्लेस ग्रेट वैल्यू ऑन मैप्स ऑन ट्रैवल बुक्स. इकोनोमाइजर्स, इस लास्ट पॉइंट रह गया, प्लेस ग्रेट वैल्यू ऑन मैप्स एंड ट्रैवल बुक्स. आपने देखा होगा some tourists are like they have these maps and travel books in their hands to decide their own journey, to as it states, place great value on maps. ठीक है, यानी वो इन चीज़ों पे ज़्यादा खर्चा करते हैं, मैप्स एंड ट्रैवल बुक्स पे. ठीक है, here comes the next part is economizers. Economizers वो होते हैं जो ट्रैवल को एज अ रूटीन अपॉर्चुनिटी मानते हैं, जबकि एक स्पेशल टाइम ऑफ देयर लाइफ की जगह. ठीक है, उन्हें लगता है कि हाँ ठीक है, तो है, घूम के ही तो आए हैं. ठीक है, तो कोई उन्हें पर्टिकुलर कोई यूनिक या कोई ऐसा एक्सपीरियंस वो नहीं करते हैं जो एक ट्रैवल देता है. ठीक है, तो ट्रैवल इज नॉट परसीव्ड एज समथिंग दैट एड्स पर्टिकुलर वैल्यू टू देयर लाइफ्स. ठीक है, वो ऐसे नहीं देखते हैं कि हाँ भी इससे हमें कुछ सीखने को मिला या हमें कुछ नया पता पड़ा, तो वो उसे ऐसे नहीं देखते, वो उसे एज अ रूटीन अपॉर्चुनिटी ही देखते हैं. Holiday is a normal way of taking routine relaxation, no worth paying extra for special amenities or service. और वे एक्स्ट्रा मनी खर्च करने या स्पेशल अमेनिटीज पाने में उन्हें वर्थ इट नहीं लगता है, तो दे आर कॉल्ड इकोनोमाइजर्स. ठीक है, इंडल्जर्स, wealthy travelers who will pay for extra comfort and better service, staying 5-star accommodation, like to be pampered. They are called indulgers. ठीक है, next we have is wait a second, we have this is a budget. I think this is Perrault. No, these are Perrault, Dorden and Dorden. ठीक है, तो these are this classification is given by Perrault, Dorden and Dorden in 1979. Sorry to not mention it here.
So as you can see by the table itself that they classified tourist typology in five types, which are budget travelers, adventure tourist, moderates, fourth is homebody tourist, fifth is vacationer. Budget travelers who had medium incomes but sought low cost वेकेशंस, ठीक है, जो ज़्यादातर मिडिल क्लास फैमिलीज जो होती है वो बजट ट्रैवलर्स कहलाते हैं. सेकंड इज एडवेंचरस टूरिस्ट, वेल एजुकेटेड एंड एफ्लुएंट, शोड अ प्रेफरेंस फॉर एडवेंचर हॉलीडेज. ठीक है, जो एडवेंचर एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इंडल्ज होते हैं कि भाई हमें ट्रैक करना है, हमें रॉक क्लाइंबिंग करनी है, हमें many activities are there in the adventure tourism, so they like to do that. Moderates who had a high predisposition to travel but not interested in weekend breaks or sports. उन्हें ट्रैवल को लेके एक्साइटमेंट तो होती है लेकिन वो वीकेंड ब्रेक्स पे जाना पसंद नहीं करते हैं, है ना, ये होता है. Then homebody tourists who are cautious people who took holidays but did not discuss their vacation with other people and spent little time planning it. ठीक है, vacationer who were a small group who spend lots of time thinking about their next holiday and tended to be active people in lower paid jobs. तो ये दिया था पैरल डॉर्डन एंड डॉर्डन ने, और ये क्लासिफिकेशन इम्पोर्टेंट माना जाता है, कई जगह पढ़ाया भी जाता है, तो दैट्स व्हाई आई इंक्लूडेड दिस. ठीक है, नेक्स्ट इज Dalen tourist typology 1989, and from here we can see from this chart is ऊपर है ट्रेडिशनलिज्म, नीचे है मॉडर्निज्म. ठीक है, इधर है आइडियलिज्म, इधर है मटेरियलिज्म. ठीक है, अब इन के भी पार्ट्स है, ट्रेडिशनल आइडियलिस्ट, ट्रेडिशनल मटेरियलिस्ट, मॉडर्न आइडियलिस्ट, मॉडर्न मटेरियलिस्ट. If we talk about traditional idealists, they are those people who demand quality, culture, heritage, famous place, security and peace. यानी ट्रेडिशनल आइडियलिस्ट है. ट्रेडिशनल तो हुई क्या कि भाई हमारी ट्रेडिशनल टूरिस्ट एक्टिविटी कैसे होती थी, हमारी यही तो होती थी कि भाई हम एक अच्छी जगह पे जाए, क्वालिटी जगह पे जाएं जहाँ का कल्चर अच्छा हो, हेरिटेज अच्छे हो, लोग अच्छे हों, सिक्योरिटी और शांति हो, तो वो कहलाते हैं ट्रेडिशनल आइडियलिस्ट. ठीक है, क्या डिमांड्स यहाँ पे लिखती हूँ मैं, आई थिंक आई शुड इंसर्ट अ स्लाइड, वेट अ मिनट. Right, so first is traditional idealist. ठीक है, they demands quality, security, peace, culture and heritage. ठीक है, नेक्स्ट अप इज ट्रेडिशनलिस्ट मटेरियलिस्ट. राइट, ट्रेडिशनल टी मटेरियलिस्ट, प्लीज थोड़ा सा कॉपरेट कीजिएगा, समझिएगा. टी मीन्स ट्रेडिशनल मटेरियलिस्ट. वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रेडिशनल मटेरियलिस्ट. दे आर ऑलवेज इन लुक फॉर स्पेशल ऑफर्स, low prices and have a strong concern with personal security. तो इसके keywords ध्यान रखिएगा. Look for special offers, ठीक है, low prices, strong concern with security. ठीक है, तो ये होते हैं ट्रेडिशनल मटेरियलिस्ट. ठीक है, कि भाई उन्हें कुछ लोग होते हैं ना जो एक पर्टिकुलर ऑफर आने पे ही समझते हैं कि हाँ भाई अभी ऑफर आया है तो चल ही लेते हैं, लो प्राइसेस हो रखी है या कुछ डिस्काउंट दे रखा होता है, तो वो तब जाके वो अपने ट्रैवल का प्लान बनाते हैं, तो वो कहलाते हैं ट्रेडिशनल मटेरियलिस्ट. सॉरी. ठीक है, अब अगर हम बात करें मॉडर्न आइडियलिस्ट और मॉडर्न मटेरियलिस्ट की, तो मॉडर्न आइडियलिस्ट आते हैं वे लोग हु सीक्स एक्साइटमेंट एंड एंटरटेनमेंट बट वांट टू बी मोर इंटेलेक्चुअल.
ठीक है, सीक्स एक्साइटमेंट, ठीक है, एंड एंटरटेनमेंट एंड बी मोर इंटेलेक्चुअल, ठीक है। मॉडर्न मटेरियलिस्ट में वे लोग आते हैं wants to I'm not saying this definition but this is available in all the sources that they want to get a tan to impress people, या हम ये समझ सकते हैं they want to do such activities which can impress people, ठीक है। तो want to impress people when they returns home, ठीक है। तो दे आर कॉल्ड मॉडर्न मटेरियलिस्ट, ठीक है। ये हो गई हमारी डेलन की टूरिस्ट टाइपोलॉजी जो उन्होंने दी 1989 में। अभी मैं इससे जुड़े आपको क्वेश्चन भी दिखाऊंगी PYQs में कि कैसे पूछा गया था इस टाइपोलॉजी पे क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट अप वी हैव इज स्मिथ टाइपोलॉजी ऑफ टूरिस्ट, ठीक है। स्मिथ टाइपोलॉजी ऑफ टूरिज्म ये इन्होंने दी थी 1989 में। लेट मी राइट इट डाउन हियर, 1989 में दी थी। प्लीज़ क्रोनोलॉजी पे ध्यान रखना, अपने नोट्स भी ऐसे ही बनाना कि क्रोनोलॉजी वाइज ही वो बने कि 1970 में ग्रे ने दी, फिर अमेरिकन एक्सप्रेस ने दी, फिर पेरोल डॉर्डन ने दी, फिर स्मिथ ने दी, तो ऐसे करके, ठीक है। स्मिथ ने क्या क्या टाइप दिए? एक्सप्लोरर, एलीट, ऑफ बीट, इंसिपिएंट मास, मास और चार्टर, ठीक है। तो एक्सप्लोरर पढ़ते हैं, नंबर्स आर वेरी लिमिटेड, है ना, एज द चार्ट इज इटसेल्फ वेरी क्लियर, इट्स सीन एज नंबर्स आर वेरी लिमिटेड, किसके? एक्सप्लोरर के। अडेप्ट टू लोकल डेस्टिनेशन एक्सेप्ट फुली, ठीक है। एलीट में क्या होता है? रेयरली सीन, और अडेप्ट टू लोकल डेस्टिनेशन एक्सेप्ट फुली, ठीक है। ये तो लिमिटेड है, एक्सप्लोरर बहुत लिमिटेड होते हैं, एलीट बहुत रेयरली देखे जाते हैं, ऑफ बीट होते हैं, अननोन होते हैं उस डेस्टिनेशंस के लिए, उस डेस्टिनेशन के लिए वो अननोन होते हैं लेकिन विजिबल होते हैं, काउंट होते हैं, ठीक है। तो वो कहलाते हैं ऑफ बीट, ठीक है। इंसिपिएंट मास, स्टेडी फ्लोज, कि ये धीरे धीरे करके एक डेस्टिनेशन पे पहुंचते जाते हैं, तो इनका क्या धीरे धीरे फ्लो बनता है। सीक्स वेस्टर्न अमेनिटीज, मास में कंटिन्यूस इन्फ्लक्स, इनका इन्फ्लक्स जारी रहता है हमेशा, एक्सपेक्ट्स वेस्टर्न अमेनिटीज। चार्टर, मासिव अराइवल्स, यानी ये तो हद, मतलब आप देखोगे कि किसी टाइम में शिमला में हर कोई जा रहा था, तो वो एक कैसे टाइप के टूरिस्ट वहाँ पहुँच रहे थे? चार्टर टूरिस्ट पहुँच रहे थे, मासिव अराइवल्स, जिससे पूछो वो शिमला पहुँच रहा था, ठीक है। और अब ऐसा टाइम आ गया जहाँ शिमला सबने घूम चुके हैं, वो दूसरी जगह एक्सप्लोर कर रहे हैं, ठीक है, नई नई जगह निकल के आ रही है, ठीक है, जो कभी अननोन हुआ करती थी। तो वहाँ पे कौन पहुँचते हैं? वहाँ एक्सप्लोरर पहुँचते हैं, ठीक है। डिमांड्स, सो इन चार्टर केस डिमांड्स वेस्टर्न amenities. Here it is written tourist impact decreases, tourist volume increases. अगर हम ऐसे देखें तो tourist volume तो increase ही हो रहा है ना, ये सबसे कम पहुँच रहे हैं, फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये, फिर इनका धीरे धीरे बढ़ रहा है फ्लो, फिर इनका आना हो रहा है कंटिन्यूसली, फिर मासिव अराइवल्स हो रहे हैं। तो टूरिस्ट वॉल्यूम इंक्रीजेज, एंड व्हेन टूरिस्ट वॉल्यूम इंक्रीजेज टूरिस्ट इम्पैक्ट डिक्रीजेस, ठीक है। ऑब्वियसली बात है ना, जहाँ कम लोग आएंगे वहाँ टूरिज्म इम्पैक्ट कम होगा, जहाँ ज़्यादा आएंगे वहाँ पे टूरिज्म इम्पैक्ट ज़्यादा होगा, हर तरीके से एनवायरमेंटली, इकोनॉमिक, सोशल इम्पैक्ट्स ऑफ टूरिज्म। एज आई नो आप सब शायद लोगों ने पढ़े ही होंगे, तो बहुत बेसिक सी बात है, हमें जब पढ़ाया जाता है टूरिज्म तो उसमें सिलेबस में, डिग्री के सिलेबस में यही होता है कि इम्पैक्ट्स ऑफ टूरिज्म क्या क्या है, ठीक है। तो इम्पैक्ट घटेगा जैसे कि हम ऊपर जाएंगे, और वॉल्यूम इंक्रीज होगा हम अगर नीचे आएंगे। तो ये है स्मिथ टाइपोलॉजी ऑफ टूरिस्ट।
ठीक है, थोड़ा मैं इनके बारे में और बता देती हूँ। एक्सप्लोरर्स जो होते हैं, ठीक है, अगर हम यहाँ पे लेट मी ऐड अ स्लाइड वन मोर, अगर हम देखें तो जो एक्सप्लोरर्स होते हैं वो ऑल ट्रेवल्स एज एंथ्रोपोलॉजिस्ट, ठीक है, एंथ्रोपोलॉजिस्ट हु आर like they like to dig in the local culture, people, heritage. They do want to know a lot about people, their living, their livelihood. So they travels as anthropologist, ठीक है। elite tourist जो होते हैं, इनकी बात आती है तो they like expensive tailor made टूर्स, ठीक है। एलीट है, उनके पास अच्छा खासा पैसा है, तो वो एक अलग अपनी टूर्स बनवाते हैं, टेलर मेड होते हैं। टेलर मेड का मतलब कस्टमाइज्ड, ठीक है, वो अपनी एक एक्सपेंसिव कस्टमाइज बढ़िया से आइटनरी बनवाते हैं, पैसे की कोई लोड नहीं, ठीक है, तो वो कहलाते हैं एलीट टूरिस्ट। ऑफ बीट टूरिस्ट, ऑफ बीट अगर हम देखें तो ऑफ बीट का लिटरल मीनिंग यही होता है अलग, थोड़ा यूनिक, डिस्टिंक्टिव, ठीक है। तो ऑफ बीट का मतलब दे एम टू गेट अवे फ्रॉम अदर टूरिस्ट, दे वांट टू डू समथिंग डिफरेंट फ्रॉम अदर टूरिस्ट, ठीक है। तो एम टू गेट अवे फ्रॉम अदर टूरिस्ट, ठीक है। देन वी हैव इधर कौन से थे, एलीट ऑफ बिट, इंसिपिएंट मास चार्टर, हाँ इंसिपिएंट मास, ठीक है, इंसिपिएंट मास। ये क्या होते हैं, ट्रैवल टू एस्टेब्लिश डेस्टिनेशंस वेयर टूरिज्म इज नॉट येट टोटली डोमिनेंट, ठीक है। इंसिपिएंट यानी यहाँ पे आना शुरू हो रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है। तो ये वेयर ट्रेवल्स टू एस्टेब्लिश डेस्टिनेशंस, ठीक है, डेस्टिनेशंस वेयर टूरिज्म इज नॉट येट डोमिनेंट, ठीक है। देन आते हैं मास टूरिस्ट। मास टूरिस्ट कौन होते हैं, मास टूरिस्ट होते हैं they expect the same things they are used to do at home, ठीक है, expect the same things they are used to वेट अ मिनट, इसी को करेक्ट कर देते हैं, यूज टू डू एट होम, तो वो होते हैं मास टूरिस्ट, ठीक है। अगर हम ये हो गई कौन सी, स्मिथ टाइपोलॉजी ऑफ टूरिस्ट, ठीक है। देन वी हैव प्लॉग क्लासिफिकेशन ऑफ टूरिस्ट, एज इन्होंने प्रॉपर एक मॉडल से समझाया था कि कैसे टाइप्स के टूरिस्ट होते हैं। तो उन्होंने ये 5 कैटेगरी दी थी कि साइकोसेंट्रिक, नियर साइकोसेंट्रिक, नियर साइकोसेंट्रिक, मिड सेंट्रिक, नियर एलोसेंट्रिक एंड एलोसेंट्रिक, ठीक है। और ये इन्होंने कब दी थी, इंट्रोड्यूस तो की थी इन्होंने, इंट्रोड्यूस्ड इन 1967, ठीक है, एंड रिवाइज्ड इन 1974, ठीक है। तो आप मेरे ख्याल से तो आप इंट्रोडक्शन याद रखना कि 1967 में इन्होंने इंट्रोड्यूस की थी ये, ठीक है। तो अब अगर हम इनका क्लासिफिकेशन पढ़ें तो इसमें आता है सबसे पहले साइकोसेंट्रिक, ठीक है। साइकोसेंट्रिक कौन होते हैं,
let me insert a slide. Psychos sorry, I have to delete it and put on a blank slide. Wait a minute. New slide, blank. ठीक है. साइकोसेंट्रिक कौन होते हैं? साइकोसेंट्रिक, अब ठीक है ना. साइकोसेंट्रिक, oh, I don't know what has been happening here. चलो यही समझा देती हूँ. आई थिंक यही वर्क कर रहा है ये. साइकोसेंट्रिक होते हैं नर्वस एंड नॉन एडवेंचरस. ठीक है. दे आर अफ्रेड टू टेक रिस्क. ठीक है. साइकोसेंट्रिक होते हैं वो लोग जो नर्वस होते हैं, नॉन एडवेंचरस होते हैं, अफ्रेड टू टेक रिस्क होते हैं, फेमिलियर ट्रैवल डेस्टिनेशंस पे जाना पसंद करते हैं, कंप्लीटली डिपेंडेंट होते हैं. ठीक है. वो होते हैं साइकोसेंट्रिक. ठीक है. वो होते हैं हमारे साइकोसेंट्रिक. ठीक है. फिर आते हैं नियर साइकोसेंट्रिक. नियर साइकोसेंट्रिक आते हैं. प्लीज गाइस कॉपरेट. आई थिंक माय मार्कर इज इन वर्किंग राइट नाउ. इट वाज वर्किंग बिफोर बट राइट नाउ इट हैज बीन some issue, so I would discuss it in the audio itself. ठीक है. साइकोसेंट्रिक मैंने बता दिया है. नियर साइकोसेंट्रिक आर those who might choose some activities on the spot or unplanned visit to a destinations. ठीक है. ये साइकोसेंट्रिक तो होते हैं. नियर साइकोसेंट्रिक होते हैं. ठीक है. साइकोसेंट्रिक तो एकदम ही फिक्स चलते हैं कि सब कुछ फिक्स्ड है, बस यहाँ होके आना है, इतने इतने टाइम में होके आना है. वो कहलाते हैं साइकोसेंट्रिक. उन्हें रिस्क लेने में डर लगता है. ठीक है. नर्वस होते हैं. ठीक है. नियर साइकोसेंट्रिक उससे थोड़ा फ्लेक्सिबल होते हैं. ठीक है. तो वो एट द स्पॉट कोई अननोन डेस्टिनेशन पे विजिट भी प्लान कर लेते हैं. ठीक है. फिर है मिड सेंट्रिक. मिड सेंट्रिक में आता है दे आर द टूरिस्ट हु गोज टू प्लेसेस दैट हैव बीन पॉपुलराइज्ड बाय एलोसेंट्रिक. ठीक है. जो ट्रैवल डेस्टिनेशंस एलोसेंट्रिक्स द्वारा डिस्कवर की जा चुकी है, वहाँ पे ये जाना पसंद करते हैं मिड सेंट्रिक वाले. ठीक है. ये बीच में है. ना वो साइकोसेंट्रिक है एकदम, ना वो एलोसेंट्रिक एकदम, बस वो बीच में हो गए. तो क्या हो गया कि भाई हमें अब जो ये लोग घूम के आ चुके हैं जगह, कौन, एलोसेंट्रिक और नियर एलोसेंट्रिक, अब हम वहाँ जाएंगे. तो वो वहाँ लोग कौन जाते हैं? मिड सेंट्रिक वाले जाते हैं. ठीक है. नीदर एडवेंचरस नॉर अफ्रेड. ठीक है. नीदर डिपेंडेंट नॉर एडवेंचरस. ठीक है. ना ये पूरी तरीके से डिपेंडेंट होते हैं, ना ये पूरी तरीके से एडवेंचरस होते हैं, ना ये पूरी तरीके से अफ्रेड होते हैं. इसलिए इनको बीच में रखा गया है कि कुछ क्वालिटीज इनमें साइकोसेंट्रिक की है, कुछ क्वालिटीज इनमें एलोसेंट्रिक्स की है. ठीक है. अब हम बात करते हैं नियर एलोसेंट्रिक की. ठीक है. तो नियर एलोसेंट्रिक आर दोज टूरिस्ट हु आर अमंग the first major wave of adapters after a destination has been found by the allocentric. अब एलोसेंट्रिक द्वारा एक प्लेस डिस्कवर कर ली गई. ठीक है. अब उस प्लेस को फेमस बनाने का काम, उसको लोगों तक पहुंचाने का काम किसका है? नियर एलोसेंट्रिक का. ये वो लोग होते हैं जो अब उस जगह को अडॉप्ट करेंगे, उस सिस्टम, उसको सिस्टम में लाएंगे. ठीक है. तो वो कहलाते हैं नियर एलोसेंट्रिक. और एलोसेंट्रिक तो फिर है ही एकदम एक्सट्रीम कि ये एकदम एडवेंचरस होते हैं. दे लाइक टू टेक रिस्क, दे लाइक टू ट्राई न्यू थिंग्स. ठीक है. और दे डोंट लाइक थिंग्स बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन अ वे.
ठीक है, दे चूजेस न्यू प्रोडक्ट्स रादर देन पॉपुलर एंड एस्टेब्लिश्ड ब्रांड्स। ठीक है, आउटगोइंग होते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंट होते हैं, तो ये कहलाते हैं एलोसेंट्रिक्स। इनके अदर नाम्स जो हैं वो ये है वेंचरर, नियर वेंचरर, नियर डिपेंडेबल एंड डिपेंडेबल सेकोसेंट्रिक। ठीक है, तो ये हो गया प्लॉक्स का क्लासिफिकेशन ऑफ टूरिस्ट जो आया था 1967 में। आप प्लीज ये चार्ट भी बना लीजिएगा अपने नोट्स में, दैट इज वेरी मच कन्वीनियंट टू लर्न। ठीक है, नेक्स्ट है बैकपैकर्स, फ्लैश पैकर्स, ग्रे पैकर्स, एम्प्टी नेस्टर, डिंक्स एंड सिंक्स। ठीक है, तो डिंक्स और सिंक्स मैं समझा देती हूँ पहले। इनके बस फुल फॉर्म्स हैं डबल इनकम, ओह इट्स वर्किंग, नो किड्स, डबल इनकम, नो किड्स। ठीक है, इसका है सिंगल इनकम, नो किड्स। ठीक है, नो किड्स, डिंक्स, सिंक्स। ठीक है, एम्प्टी नेस्टर्स कौन होते हैं? एम्प्टी नेस्टर्स होते हैं वे टूरिस्ट जो मतलब ऐसे पर्सन्स, ठीक है, जिनके बच्चे अपने घर से अलग जॉब वगैरह या किसी काम से अपने करियर की वजह से कहीं बाहर ही रहते हैं और वो अपने फैमिली नेस्ट को छोड़ के चले जाते हैं। ऐसे पेरेंट्स जो एजड बिटवीन 45 to 55 होते हैं, ये वेल एजुकेटेड होते हैं, इनके पास हाई डिस्पोजेबल इनकम होती है, बट ये घूमते अकेले हैं। ठीक है, तो वो कहलाते हैं एम्प्टी नेस्टर्स। ठीक है, ये बहुत आई डोंट थिंक कि एग्जाम में पूछने की प्रोबेबिलिटी इनकी ज़्यादा है, बट इट्स गुड टू नो समथिंग न्यू, तो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू। ठीक है, ग्रे पैकर्स, एज इट इज इन द नेम, ग्रे पैकर्स आर दोज हु आर रिटायर्ड विद टाइम, retired with wait a minute, retired with टाइम एंड मनी। ठीक है, अपनी जॉब से रिटायर होके बैठे हैं एंड दे अर्ज टू गो ऑन अ सेवरल मंथ लॉन्ग हॉलीडेज। ठीक है, तो अगर हम एग्जाम्पल देखें तो जो क्रूज शिप्स होते हैं, ये ज़्यादातर क्रूज शिप्स में पाए जाते हैं कि एम्प्टी नेस्टर्स, ग्रे पैकर्स होते हैं जो रिटायर्ड है, जिनके पास टाइम की कोई कमी नहीं है, जिनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, तो वो ग्रे पैकर्स होते हैं। ठीक है, देन वी हैव इज फ्लैश पैकर्स। फ्लैश पैकर्स आर दोज टेंड टू बी मोर मैच्योर ट्रैवलर्स। ठीक है, मैच्योर ट्रैवलर्स, आई थिंक ठीक है, मोर मैच्योर ट्रैवलर्स होते हैं। ठीक है, रेफर्स टू एन एफ्लुएंट बैकपैकर्स। बैकपैकर्स के ही क्या होते हैं, ये एफ्लुएंट बैकपैकर्स होते हैं। बैकपैकर्स तो क्या बजट पे चलते हैं, फ्लैश पैकर जो होते हैं जो एफ्लुएंट होते हैं। ठीक है, तो इसलिए इन्हें एफ्लुएंट बैकपैकर्स कहा है। ठीक है, देन आता है बैकपैकर्स। तो बैकपैकर्स तो वही है, बजट वाइज चलते हैं। ठीक है, और चीप डेस्टिनेशंस, चीप एज इन वो चीप नहीं, मनी वाइज चीप। ठीक है, जहाँ पे घूमना सस्ते में हो सकता है, ठीक है, वो वहाँ घूमना पसंद करते हैं बैकपैकर्स। तो ये था tourist typology and behaviors. We have discussed about 5 to 6 typology, I guess. And here are some questions from PYQs. I think it was between 2015-16 पेपर्स। ठीक है, तो उनमें ये क्वेश्चन मिले थे जिनके आंसर्स आपको खुद निकालने पड़ेंगे। ठीक है, आई एम नॉट गोना टेल यू द आंसर्स, आई थिंक यू नीड टू गेट सम वर्क डन एज वेल। तो
ये क्वेश्चंस थे इसमें. A type of tourist who seeks novelty or even at discomfort and danger prefers to be a part of community and this. तो ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं. Which of the following tourist typology is given by Dellen? As I said, इसका क्वेश्चन बना हुआ है, तो ये तो ज़रूर करना है. ठीक है, मतलब सारी टाइपोलॉजी ज़रूर करनी है, बट मैं आपको बता रही हूँ कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं. ऐसा नहीं है कि अगर ये बहुत छोटा टॉपिक है तो इससे क्वेश्चन नहीं आएंगे. ठीक है, इफ इट इज इन द सिलेबस देन इट विल कम समहाउ समवेयर. ठीक है, इन एनी फॉर्म. ठीक है, तो इन द मैथ्स द फॉलोइंग बन सकता है कि भाई डेलन ने कौन सी दी थी, स्मिथ ने कौन सी दी थी, प्लॉग ने कौन सी दी थी. मैं इन द फॉर्म ऑफ मैच द फॉलोइंग. ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ क्रोनोलॉजी तो आता ही है. ठीक है, यहाँ इन्होंने सीधे डेफिनेशन पूछ ली है या इन्होंने सीधे क्लासिफिकेशन पूछ लिया है कि डेलन ने कौन सा दिया था. ठीक है, ठीक है, ये 3 अपन ने पढ़ ही लिया है, इम्पोर्टेंट. ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड इज, ये 2 क्वेश्चन और मिले थे मेरे को. दे डिमांड ऑथेंटिक बट हायर स्टैंडर्ड अकोमोडेशन, ट्रैवल फॉर शॉर्टर पीरियड्स एंड हैव हायर डेली एक्सपेंडिचर. तो ये आपको बताना है. ठीक है, जैसे कि मैंने बताया PYQs करने का तरीका क्या है, जो आंसर है उसका एक्सप्लेनेशन तो आप करो ही. ठीक है, उसके अलावा जो बाकी के 3 ऑप्शन है उसके बारे में भी आप ढूंढो इंटरनेट पे कि ये क्या चीज़ है. ठीक है, इससे आपका एरिया बढ़ेगा, आपका नॉलेज का एरिया बढ़ेगा, इसलिए मैं ये बोल रही हूँ आपको करने को. और इट हेल्प मी अलॉट इन माई प्रिपरेशन टू, तो आई वुड सजेस्ट टू डू इट द सेम. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन हु स्टेज फॉर एटलीस्ट 1 नाइट एंड अ मैक्सिमम 1 ईयर इन कलेक्टिव अकोमोडेशन द प्लेस वेयर इज कॉल्ड व्हाट. ठीक है, ये अगर आपने मेरा पिछला वीडियो, मेरा पहला वीडियो देखा हो, उस पे ये था बेसिक डेफिनेशन ऑफ टूरिज्म. ठीक है, तो ये उससे जुड़ा क्वेश्चन है, वो मैं पिछले स्लाइड में ऐड करना भूल गई थी पिछले PPT में, इसलिए मैंने इसमें किया है. तो प्लीज़ 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 PYQs आर वेरी इंपॉर्टेंट टू रीड. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट टू सॉल्व. ठीक है, तो आप प्लीज़ PYQs पे ध्यान दीजिए. ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग. आई होप यू लाइक इट एंड प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.